Hi, everybody. Good afternoon. My name is Mohammed Tufail. I'm assistant professor at University of Sindal campus, Badin. Presently, I'm talking to you all from the platform of the Paragon Academy, Badin, and I welcome you all in this free online English language teaching classes. Today, we are going to conduct the 8th session of this English language learning classes. And those students who are new, I may inform them that this class is a free and I teach on every alternative day from 4 to half past 5 o'clock. And the material what we discuss here, that is available on Google Classroom, and the code of the Google Classroom is available on the Facebook page of Paragon Academy Badin, where from I am talking now. So the new students, they may download material from there and we would use it for developing our language skills. You know, in our previous classes, we tried to connect the teaching of English language, and we tried that what language is, language क्या होती है, what are the basic skills और language सीखने के skills क्या होते हैं, what are essentials और उनके essentials क्या होते हैं. जिस तरीके से ने skills we talked about that we have 4 skills: listening, speaking, reading, writing. 2 are input skills like listening and reading, they are input skills, whereas listening, speaking and writing, they are output skills, and input skills are directly proportional to output skills. जो आपकी input बढ़ेगी तो आपकी output बढ़ती जाएगी. So you can improve your input, and in the case of input, the much importance should be given to your listening as well, because English is not L1, English is L2 for us. L2 से मेरी मुराद language 2 है. So when we learn L2, we equally focus on 4 skills, because in L1 2 स्किल आप घर पे सीख लेते हैं, listening, speaking, and reading, writing के लिए आप स्कूल जाते हैं, but English के लिए we have to equally focus all these 4 skills. And in this class, we try to use these all 4 methods: listening, speaking, reading, writing. Somehow we can't practice this speaking area in this online session, so I have asked you to go on your part and you practice at your own. So for reading and listening is a concern, and even somehow writing we would conduct through this process. And when we talked about essentials of language, कि अब लैंग्वेज सीखने के लिए बुनियादी हमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने कहा था कि दैट यू नीड, देयर आर मल्टीपल, बट द इनिशियली टू बिगिन विद, एक चीज़ की शुरुआत करने के लिए यू गो विद द सेमेंटिक्स, आप अपने वोकैब को बढ़ाएं, एंड यू गो विद योर फोनेटिक्स, उनके प्रॉपर तलफ़्फ़ुज़. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डोंट हैव दिस means phonetics or the pronunciation, this could be a problem in a language, you know, that if you are not your pronunciation is not up to the mark, अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ बेहतर नहीं है तो वो बसा औक़ात प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, और तलफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, और कभी कभार तो ये बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा कर सकता है तलफ़्फ़ुज़ की वजह से, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का बड़ा अहम रोल होता है आपकी जोनों में. मैं आपको एक छोटी वीडियो दिखाता हूँ, दैट इज़ अ बिट जस्ट इन लाइटर सेंस. इसको लीजिएगा और इसमें देखेंगे हाउ प्रोनाउंसिएशन इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम. सो प्लीज़ जस्ट एंजॉय दिस वीडियो, वी विल कम बैक.
friend, take left. Okay, sir. Okay, bark, bark. Excuse me, sir. Bark, bark. I cannot get you, sir. Stop here. Okay. Habibi, I told you 2 times to bark. Why you not understand? But sir, why should I bark? I came for driving, not for barking. You came from driving. If you don't know how to bark, who will pass you? I will not pass you. You go, my friend, understand? You pass, you go office. You have to bark. Somewhere you have to bark. You go out with your friend. Somewhere you have to bark. If you don't know how to bark, who will pass you? Sorry, you will fail. Your driving is good, I check. But if you don't know how to bark, sorry. One chance, bark or go home. Sir, first time I'm listening for driving test, I need to bark. I don't know who give you training. First, we are giving training there to bark. Then only to drive. You don't know how to bark? MashaAllah. Who will give you this? I don't know. Sorry. Try to bark. You will take the license today. How I can bark, sir? How? I don't know how to bark. Don't tell me you don't know. Everyone has to learn. See, Habibi, as the brother I'm saying you, my wife don't know how to bark before. Now she bark. Wallah, very, very nice. Wherever we go, she bark. I'm happy to see her. Before she don't know how to bark. Now she bark more than better me. Try. If you want license, try to bark. Okay, sir. If you are saying if your wife also bark, and barking is very important for driving test. You take this much time, someone will come and bark. You will not get any chance to bark. Oh, okay, sir. I will bark. Okay, sir. 1 minute, you have to bark. Okay, sir. Okay. I will try, sir. I will try. Bow, bow. Bow, bow. Bow, bow, bow. What is this? What you are doing? Sir, you already told me, sir, bark nicely, then I will get license, You sir. are not human Your being. wife also barking, You are sir. not human being. Sir, bow, bow, sir, bow, bow. Bow, bow, I think that. Now here you can see the difference between the word bark, B-A-R-K, and the park, P-A-R-K. That is all about the vocal organs. You know that in Arabs they have limited sound in their language. As a result, what happened that some of the sounds their vocal organs can produce, because there is no term like a P in Arabic language, and there is no sound like a T in Arabic language. Then when they pronounce, they say country, and even they say Pakistan, not Pakistan. So it's the case here. Pronunciation is very important, and you, especially people from here, Pakistan, maybe Sindhi or Punjabi, Urdu speaking, these languages have variety of sounds. Because of this variety of sounds, your vocal organs are already trained. Means you could produce these all sounds, be, pe, te, de, ke, le. So आपके पास sounds की already बहुत ज़्यादा variety. In this clip we see an Arab instructor, जो ना instructor होता है जो सिखाता है, is giving a driving test. अच्छा, अक्सर ये वर्ड को हम गलत यूज़ करते हैं जब हम कोई इम्तिहान या टेस्ट वगैरह देने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू गिव द पेपर. ओके, सो देखिए, आप पेपर नहीं देते, यू आर गोइंग टू टेक द पेपर. जो स्टूडेंट्स होता है ही इज़ टेकिंग द पेपर, और जो टीचर होता है वो एक्चुअली गिव्स द पेपर. अक्सर हम कहते हैं आई एम गोइंग टू गिव एग्ज़ाम. यू आर नॉट गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम, यू आर गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम. एग्ज़ाम हम टेक करते हैं, टीचर हमें जो है ना वो टेस्ट, टीचर गिव्स द टेस्ट. सो गिविंग ए ड्राइविंग टेस्ट, वो उसको ड्राइविंग टेस्ट उसका ले रहा है टू अ जेंटलमैन. ही ऑर्डर्स द लर्नर टू स्टॉप द कार. ये उसको हुक्म देता है कि आप कार को रोकें. एंड द लर्नर फॉलोज, और जो लर्नर है वो उसके अहकामात को फॉलो करता है. ये फॉलोज इज ओके.
orders, okay, he orders the learner to stop the car, and the learner follows the instruction and stops. Then he asks the learner to park the car. फिर उसे कहता है कि आप कार को पार्क करें. Being an Arab, he is unable to pronounce park, क्योंकि वो अरब है तो उसके जो तलफ़ुज़ हैं वो फी को नहीं प्रोनाउंस कर सकते. So he is unable to pronounce, ये प्रोनाउंस नहीं कर सकते. park, he pronounces it as a bark. park, he pronounces it as a bark. तो ये उसको कैसे प्रोनाउंस करता है? bark. द लर्न. अब देखिए यहाँ पे वही हम आर का रूल फॉलो कर रहे हैं ना. आर के बाद कॉन्सोनेंट है तो हम ये नहीं पार्क नहीं कह रहे, पार्क या बाक. द लर्नर गेट्स कंफ्यूज्ड, जो वो ड्राइविंग टेस्ट लेने वाला जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. एंड इज अनएबल टू डेवलप एनी सेंस फ्रॉम बार्किंग. उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बार्किंग से क्या मुराद है. द इंस्ट्रक्टर informs the learners that his wife also didn't know how to walk. इसकी बीवी को भी पता नहीं था. अब देखिए यहाँ पे जब ये खुद यूज़ करता है, आप उसको वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो वो कहता है माई वाइफ डोंट नो. आता है कि वहाँ पे उसको डजन यूज़ करना था, डजन नो या डिडंट नो, तो लेकिन उसने वहाँ पे डू लगाया था. वाइफ सिंगुलर है, वहाँ पे उसको डज लगाना था. बहरहाल सो वाइफ आल्सो डिडंट नो हाउ टू बाक. ये कह रहा है कि मेरी जो मिसेस थी उसको भी पता नहीं था कि कैसे जो है ना वो पाक करना चाहता है जिसको वो बाक कर रहा है. बट नाउ शी हैज़ लर्नड एंड शी कीप्स बाकिंग एवरीवेयर. लेकिन अभी उन्होंने सीखा है और हर जगह पर शी कीप्स पाकिंग, लेकिन बट ही इज सेइंग बाकिंग. सो फाइंडिंग नो वे, अब कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है. फाइंडिंग नो वे, कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा है. द लर्नर स्टार्ट्स बाकिंग एंड द ट्रेनर बीइंग स्कैर्ड runs away the scene. और scared का मकसद है खौफज़दा, और वो टीचर खौफज़दा होकर वो छोड़कर चला जाता है. So this was just a kind of in a lighter sense. This was a kind, but you know that your pronunciation, it matters a lot. Okay, sometimes the things what you convey, you are trying to convey to people, and if they are not properly pronounced, it can cause a problem. जिस तरह अक्सर देखें कि हम यहाँ पे जो ना एल ए डब्ल्यू को ला पढ़ते हैं, यहाँ तक इसका सही तलफ़ुज़ होता है एल ए डब्ल्यू को, जो कानून है इसको हम लो, इंग्लिश में लो प्रोनाउंस करते हैं. तो अगर कोई आपके पास अंग्रेज़ टीचर आ जाए और आपको कहे कि आई एम मिस्टर थॉमस एंड आई विल टीच यू लो, और आप अगले दिन अपने पापा को कहें नहीं पापा मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये लो पढ़ाता है, मुझे हाई पढ़ना है. सो दिस कुड बी द रीज़न. एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज आई मेंशन, एंड how these things they move forward, okay, they are very very much important. So your language, when we talk about your language, okay, your semantics, collect the words, and also you should improve your phonetics और उनके तलफ़ुज़. अब देखें ये जितने भी वीडियोस में आपको दिखाता हूँ या जो उनका फिर वीडियोस के साथ जो उसकी ऑफिस की फ़ाइल होती है वो दिखाता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपकी जो है ना पहली बात है तो आपकी वो कैब जो है ना में इजाफा हो. जब तक आपके पास सिमेंटिक्स नहीं होगी तब तक हम लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे. लेकिन सिमेंटिक्स से मुराद क्या? सिमेंटिक्स से मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हमें ऐसी कोई सिमेंटिक्स नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ वर्ड और मीनिंग को याद करें और फिर भूल जाएं. नो, सिमेंटिक्स से मुराद मेरी वो है कि वो वर्ड्स जिसको आप यूज़ करें. अब अगर ये क्लिप आपने देखा, इस पर आप प्रैक्टिस करें, इसी को बार बार बोलें. तो जब आप इसको बार बार बोलेंगे तो फिर आस्ता आस्ता ये इसमें होने वाली जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स हैं, वो आपको आपकी लैंग्वेज में प्रैक्टिस में आ जाएंगे. फिर इन्हीं वर्ड्स को मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्कैर्ड है, आपने सीखा कि आपको खौफ हो, किसी को खौफ लगता है तो स्कैर्ड हो गए, और इसी को आप अपने घर में यूज़ करते हैं कि माई ब्रदर इज़ स्कैर्ड, मेरा भाई खौफज़दा है, स्कैर्ड. ओके, नाउ व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग इज़ दैट व्हेन यू आर यूजिंग दिस स्कैर्ड देयर, you are converting, you are using this particular word in your language. Okay, until you use vocab in your practice in your language. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वो रशा के बड़े खूबसूरत राइटर्स थे जिसने कहा था कि अल्फाज जो हैं वो खिलौने नहीं होते. हम क्या करते हैं, जब अल्फाज हमारे पास आ रहे होते हैं तो हम इनकी कदर नहीं कर रहे होते हैं. फिर जब भी किसी मकाम पे, किसी प्लेटफॉर्म पे हमें बोलना पड़ता है तो यही अल्फाज फिर तितली बन जाते हैं और फिर वहाँ हम सोचते रहते हैं
कि कहाँ से अल्फाज उधार ले आएँ और अपने मुद्दा अपनी बात कह पाएँ. So for that it's very much important to move forward with your these three key ideas. Your semantics उसको बढ़ाएं, number 2 phonetics उनका तलफ़ुज़, and number 3 syntax जो grammatical compositions हैं जहाँ पे language function करती है. अब in this course we have taken these all three components together. हम जितना भी मटेरियल कवर करते हैं, डिफरेंट क्लिप्स, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट रीडिंग मटेरियल, दैट इज डिजाइंड टू बिल्ड अप योर सेमेंटिक्स, नंबर 1. एंड व्हेन वी यूज दिस मटेरियल, either we are listening to video, again we are trying to improve our pronunciation because we would focus how these words are being pronounced there, or when we are reading, and in this reading session when I read, then again I primarily focus on the pronunciations of those words. फिर मैं उनके तलफ़ुज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि आप उसके तलफ़ुज़ को सीखें कि दिस इज़ बाक, फाक, इस तरीके से हम उनको उनके तलफ़ुज़ को इम्प्रूव करें. नंबर 2. फिर then we switch towards the third component, and that is about the syntax. Okay, and syntax what we call grammar. And this is how these three components they will go together in this language session. Okay. So now we have to switch. This is our 8th session, and we have to connect this class with the advanced part of this studies. And in the previous classes, whatever we covered, I try to recap and I try to connect this class with my previous session. And now we are moving forward to this new session. Okay. Now look at that. Okay, if in this previous slides, okay, we talked about that language when we looked at the structures of language, that it begins with the letters, and when the letters are put together we produce syllable. हम syllable बनाते हैं. syllable जो उर्दू सिंधी में letters और diacritic marks, diacritic marks जो ज़ेर ज़बर पेश जो जिसमें हम माजी में बहुत डिटेल में इन तमाम पे बात कर चुके हैं, तो उससे साउंड बनते हैं. जब साउंड इकट्ठे होते हैं तो फिर एक वर्ड बनता है. चूँकि अंग्रेज़ी में हमारे पास ज़ेर ज़बर पेश का कोई तस्वर नहीं है, तो अंग्रेज़ी में जो साउंड बनते हैं वो कॉन्सोनेंट और वॉयल्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं. व्हेन वी पुट टुगेदर वी मेक दिस साउंड. ओके, देन वी कम टू दिस वर्ड्स. ओके, अब जो वर्ड्स हैं, जैसे देखिए पिछली क्लास में आई टॉक्ड अबाउट दैट वी हैव स्टॉप टीचिंग दिस ट्रेडिशनल ग्रामर, but we are starting this as a functional grammar. And what is the difference in that? Okay, functional grammar is teaches us that every word has its function to do. What is its prime function? So instead of a parts of class, parts of a speech, we are using term what we call word classes. And what is the difference in the word classes? When we call word class, we mean that each class has to play its role. So each component, each word what we use in our language, it has its significance, its function. And what is its function in the system of a language? Because language as a whole is a system, and what is its function, that is very important. And we just try to understand the function of each part and what role it plays, and then we try to connect it in our practicing material. And we would adopt this approach when we would analyze any sentence. The basic important thing is that when we analyze, जब हम किसी भी sentence का तज्जिया करें, उसका छेद करें, तो हमें उसमें पता चल जाए कि ये adjective है, ये noun है, ये verb है, यहाँ पे इसका ये function है, इसका ये function है. That is a far greater and far important then simple remembering these names and definitions. जो हम ट्रेडिशनल ग्रामर की क्लास में जो हम definitions याद कर रहे थे कि noun is a name of फला फला फला, pronoun is a name word used of noun. This approach we will just part way with that traditional approach and we would move forward. So my dear students, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर लैंग्वेज की खुली हुई है, तो अब आप सब लेटर्स से और सिलेबल से तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. अब हम वर्ड से जब आगे बढ़ते हैं तो वर्ड को हम क्या करते हैं, वर्ड्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे क्या है, वी कॉल इट वर्ड क्लासेस.
जब हम वर्ड को कह रहे हैं क्लासेस, तो हम क्या करें, हम हर वर्ड की एक क्लास बना रहे हैं। क्लास से हमारा मतलब ये है कि हर वर्ड अपनी लैंग्वेज में जो काम कर रहा है, जो उसकी क्लास है, हम उसकी क्लास को समझेंगे कि उसका लैंग्वेज सिस्टम में रोल क्या है। फिर जब हमें उसके रोल का पता चलेगा, उससे फिर हमें आसानी होगी कि हम ओवरऑल उसको समझ पाएंगे कि वो कैसे फंक्शन करता है। तो पहला जो है ना, हमारे पास जब नाउन आता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, जॉब ऑफ नाउन क्या है। नाउन सिर्फ चीज़ों पे नाम रखता है, इससे नेमिंग वर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। हमने चीज़ों पे नाम रखे हैं ताकि हम उनकी पहचान करें। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ व्हाट एवर द नेम्स आर देयर, जो भी नाम है किसी भी चीज़ के आपने रखे हुए, मे बी ऑफ ए पीपल, ऑफ ए सिटीज, नेम ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन योर होम, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, जो घरेलू चीज़ें हैं, फ्लावर्स, नेम ऑफ फ्लावर्स, फूलों के नाम, नेम ऑफ ट्रीज, उनके नाम। बट दिस ऑल नेम्स आर फॉर आइडेंटिफिकेशन। इनका काम है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। तो नाम जो है, नाउन लैंग्वेज में शनाख्त पैदा करता है, लेकिन साथ में एक मसला पैदा कर देता है, और वो मसला क्या है, दैट इट काजेज रिपीटेशन। ओके, इसलिए रिपीटेशन पैदा करता है। रिपीटेशन से हमारी लैंग्वेज के अंदर मनाचनी पैदा हो जाती है। मनाचनी का मतलब है यकसानियत। यकसानियत से मुराद है कि एक जैसी चीज़। वी डोंट लाइक मनाचनी। अब देखो, मनाचनी को हम सेंटेंस में यूज़ करें, मुझे मनाचनी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक मनाचनी ऑफ फूड, खाने की मनाचनी, स्वयं खाना, रोज़ खाना। यू डोंट लाइक मनाचनी ऑफ फूड, इवन यू डोंट लाइक मनाचनी ऑफ ड्रेस। यू नीड अ चेंज, यू नीड अ वेराइटी। तो ये जो एक की नाउन बात, ओके, sorry it got disconnected. We are again back. So noun is in the name, and in order to avoid this repetition we move towards pronoun. Okay, noun की इस repetition को avoid करते हुए हम जो है ना pro की तरफ जाते हैं। PROW से pro का मतलब है जो चीज़ किसी चीज़ की सपोर्ट करने वाला हो, हिमायत करने वाला हो, उसी के फेवर करने वाला हो, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं pro। इसका जो अपोजिट होता है वो एंटी होता है, ANTI, एंटी एजुकेशन। इसका मतलब है जो एजुकेशन के मुखालिफ हो। प्रो एजुकेशन, उसका मतलब है जो एजुकेशन को सपोर्ट करने वाला हो। अगर आप कहें कि सर मैं इस जज के पास अपना केस नहीं ले जाऊंगा बिकॉज दिस जज इज़ प्रो वुमेन, ये वुमेन के हक में फैसले देता है, तो वी आर यूजिंग वर्ड प्रो वुमेन। प्रो मीन्स हिमायत करने वाला, सपोर्ट करने वाला। तो आप प्रो को सिर्फ नाउन तक महदूद ना करें। प्रोनाउन जो नाउन की सपोर्ट करे, प्रो वुमेन जो औरतों की मदद करने वाला हो, सपोर्ट करने वाला हो, प्रो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो जमहूरियत को फेवर करने वाला हो या जमहूरियत के हक में हो, तो आप कहते हैं कि आई एम प्रो डेमोक्रेटिक। तो प्रो का मतलब है उसकी हिमायत करने वाला, सपोर्ट करने वाला। हेयर प्रो दैट इज़ अ नाउन सब्स्टिट्यूट, ये नाउन का जगह पर आता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है नेमल बदल। अब ऊपर जो हमने कहा कि मैं जाहिद के पास गया, जाहिद घर में मौजूद था, जाहिद ने दरवाज़ा खोला। हेयर वी विल नॉट यूज़ दैट, लेकिन हम कहेंगे कि मैं जाहिद के पास गया, उसने दरवाज़ा खोला। अब ये उस कौन है, ये सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मीन्स नेमल बदल है। नेमल बदल मीन्स उसकी जगह पर काम आने वाला। किसकी जगह पर? जाहिद की जगह पर। उसने दरवाज़ा खोला, उसने कौन? जाहिद ने। उन्होंने चाय पिलाई, उन्होंने कौन? जाहिद ने। वो मुझे अपनी लाइब्रेरी में ले गया, वो कौन? जाहिद ने। अब देखें, वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट जाहिद एवरी टाइम। उस, उन्होंने, वो, ये सब दीज आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अ नाउन। ओके, ये हम उस नाउन की जगह पर नेमल बदल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोनाउन का जो असल मकसद है वो लैंग्वेज के अंदर वैरायटी पैदा करता है। इट्स बेसिक जॉब इज़ दैट टू control this monotony what noun has produced, and it brings variety in your language. I, मेरे नाम की जगह पर वी, हम सब के नाम की जगह पर यू। अच्छा, इसको वी पढ़ा करें, वी ना कहें, वी, यू, ही, शी, इट। अब देखिए, इट का मामला जो है, इसमें अक्सर साथी कहते हैं कि इट बेजान चीज़ों के लिए लगता है। ऐसा नहीं है, इट जानदार चीज़ों के लिए भी लगता है। इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ कैट। तो
इट सिर्फ इंसान के लिए हम क्यों नहीं लगाते? इंसान अगर मर्द है तो हम ही लगा देते हैं, फीमेल है तो हम शी लगा देते हैं। बाकी इट इज़ अ बस, इट इज़ अ डॉग। तो ये नहीं होगा कि इट सिर्फ फीमेल बेजान चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग इनएनिमेट चीज़ों के लिए लगता है। दैट्स नॉट ट्रू। द ये ज़्यादा है उन लोगों के लिए, वन, समवन, नन, समबडी, नोबडी sorry. So we can use that as a pronoun. Then we come to adjective. Adjective का बड़ा ज़बरदस्त काम है। अब देखें, मैं आपको जो ये पढ़ाना चाहता हूँ ना, मैं इनकी आपको डेफिनेशंस नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, डेफिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इनके फंक्शन और आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि ये लैंग्वेज में फंक्शन क्या करते हैं, इसका रोल क्या है। अब देखो, नाउन जिस तरह मैंने आपको समझाया कि नाउन कभी भी अपनी वकालत नहीं करता। नाउन ऐसा समझो कि गूंगा है। नाउन इज़ लाइक ए डम, DUMB, डम। Okay, Arisha says that video is not clear. Now on my part it is clear. Initially there was some problem, but again we have downloaded this video, this material, so I think that it would help you. I don't know what is the issue with the network. Okay, service issue. Yes, exactly. This is service issue. So it may be with the different people. Well, तो अब एडजेक्टिव का जो रोल है, एडजेक्टिव का बुनियादी रोल ये है कि वो लैंग्वेज जो नाउन या प्रोनाउन है उनको, उनके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे उसकी वकालत करता है, उसको क्लियर करता है। ऐसा समझो कि नाउन जो है ना वो ऐसे जो है ना वो गूंगा है, वो नहीं बोल पाता, वो सिर्फ अपनी शनाख्त करा के चुप हो जाता है। इसकी जितनी भी वकालत करनी है, इसकी जितनी भी इसके बारे में मालूमात देनी है, वो एडजेक्टिव देता है। तो मिसाल के तौर पे आप देखिए, कोई भी आप नाउन उठा लें, टीचर इज़ ए नाउन। ओके, अब इस टीचर के बारे में जो भी मालूमात देगा ना वो एडजेक्टिव देगा। गुड टीचर, अच्छा टीचर। एक्सपीरियंस्ड टीचर, तजर्बेकार टीचर। हार्ड वर्किंग टीचर, मेहनत कश टीचर। ओके, और कोऑपरेटिव टीचर एंड काइंड टीचर, काइंड मेहरबान। polite, POLIT, polite teachers। अब देखें, एक टीचर के लिए हम कितने एडजेक्टिव लगाते जा रहे हैं। सो विल बी केस विद स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक नाउन है। आप जब आप कहते हैं कि ओबीडियंट स्टूडेंट, तो ओबीडियंट एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है। रेगुलर स्टूडेंट, रोज़ आने वाला। पंक्चुअल स्टूडेंट्स, टाइम पे आने वाला। देखें, रेगुलर वो है जो रोज़ आता है, लेकिन रोज़ आने से मुराद ये नहीं कि वो शाम के या जो है ना दोपहर में 1 बजे या 2 बजे आया और कहे कि मैं देखे रोज़ आता हूँ। दिस इज़ नॉट सो, नॉट ओनली रेगुलर बट वी नीड अ पंक्चुअल। पंक्चुअल मीन्स टाइम पे आने वाला। सो पंक्चुअल, रेगुलर, हार्ड वर्किंग, ओबीडेंट, कोऑपरेटिव, वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, वेल बिहेविंग, ये सब जो है ना वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, जिस तरह हमारी ज़िंदगी के बेजोड़ रिश्तों को हम लेकर चलते हैं, हमने ज़बान में भी वही काम किया हुआ है कि हमने नाउन को एडजेक्टिव के बेजोड़ रिश्ते दिए हैं अपनी ज़बान के इस्तेमाल में। वो कैसे, एक बार नोट करें। जब भी हम किसी की लैंग्वेज को चेक करते हैं कि उसकी लैंग्वेज के अंदर कितनी गहराई है, कितनी वुसअत है, तो ये 2 एरिया हैं जहाँ से आपकी लैंग्वेज को चेक किया जाएगा। एक कि आप नाउन्स को एडजेक्टिव्स क्या दे रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने का इम्कान होते हैं। तो 2 चीज़ों से हम लैंग्वेज को बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट तरीके से इनको हम देख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम क्या करते हैं, देखिए, ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है जिसको हमने हर नाउन के साथ, ऐसा समझे कि जिस तरह ये कज़न मैरिजेस होती हैं, तो वो मिस एल्सा काजी ने मैरिजेस रिश्तों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। मिस एल्सा काजी ने अपनी किताब में लिखा था कि हम जब भी आप ज़िंदगी में शादी करने के मामले में जब अपने से बहुत ऊंचे ख़ानदान में जाकर शादियां करते हो, तो फिर पूरी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात का बोझ उठाते उठाते जो ना वो गुजार देते हो, क्योंकि आप हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहते हो उस ऊंचे घराने से ताल्लुक़ जोड़ने के बाद।
और जब आप अपने से बहुत ज़्यादा कम जो है वो ज़हनी मयार के एतबार से कम लोगों से जाकर शादियाँ करते हो, तो जो आपके बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर कोई बहुत बड़ा विज़न, कोई बहुत बड़ा आइडियल्स या कोई बहुत बड़ा जो ना वो नज़रियात वो नहीं होते हैं। और जो तीसरी शादी जो कज़न मैरिजेज़ होती है, तो उसके लिए मिस एल्सा काजी ने सेंटेंस लिखा था कि कज़न मैरिजेस कैन बिगेट इडियट्स, कि कज़न मैरिजेस से तो हम सिर्फ इडियट ही पैदा कर सकते हैं। तो हमने भी लैंग्वेज में क्या किया है कि नाउन और एडजेक्टिव के रिश्ते को जो जोड़ा है, दैट इज़ लाइक ए कज़न मैरिज। ओके, उसमें क्या करते हैं हम कि अब ब्यूटीफुल है ना, अब हर चीज़, माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल, माई मॉम इज़ ब्यूटीफुल, माई कार इज़ ब्यूटीफुल, माई डॉग इज़ ब्यूटीफुल, माई टीचर इज़ ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हमने हर किसी के साथ जोड़ा हुआ है, हालांकि दैट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट वे टू गिव नाउन, टू गिव एडजेक्टिव टू ए नाउन। ओके, ये सही तरीका ना है। आप उस नाउन को वो एडजेक्टिव दें जो उसको एक्सप्लेन करता हो, जो उसी को, मिसाल के तौर पे अब मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसमें अगर आप कहेंगे इट इज़ ए ब्यूटीफुल क्लास, इसमें कोई सेंस नहीं निकल रहा है। या आप कहें कि ही इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल टीचर। ओके, तो क्या वो कतरीना कैफ है या सलमान खान है या शाहरुख खान है? दैट्स नॉट ओके। व्हाट इज़ दैट? हाँ, यस, आप कहें कि दिस इज़ ए इंफॉर्मेटिव क्लास, तो बात समझ में आती है। क्लास को जो आप एडजेक्टिव दे रहे हो इंफॉर्मेटिव, उसमें बात समझ में आ रही है। इट्स ए नॉलेजेबल क्लास, उससे बात को समझ में आ रही है। खाना है, उसको ये कहने देना लंच कैसा था, इट वॉज ब्यूटीफुल। देखिए, खाने को आप ऐसा एडजेक्टिव दें जो खाने को रेफर करता हो। आप कहें कि इट वॉज ए डिलीशियस, इट वॉज ए टेस्टी, इट वॉज यमी। तो यमी और टेस्टी और डिलीशियस, इट वॉज ए स्पाइसी फूड, ऐसा एडजेक्टिव लगाएं, ऐसा एडजेक्टिव दें जो उसको क्वालिफाई करता हो उस नाउन को जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो ज़बरदस्ती जो है जब आप एडजेक्टिव्स को कम देते हैं, जो हमने बेजोड़ रिश्ते दिए हैं एडजेक्टिव्स को, ये ना दें, एडजेक्टिव पे काम करें। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, यू विल एंजॉय अ लॉट टू फाइंड आउट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स फॉर एप्रोप्रिएट पीपल। पर्सनैलिटीज़ को हम एडजेक्टिव दें, सपोज आप कहें कि खायरिज्म है द कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, उसकी बड़ी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी। कैरिज्मेटिक से मुराद है कि जो पुरकशिश हो, जो बंदे को अपनी तरफ कशिश करके रखे। वो बड़ा खूबसूरत शेर है कि वो खुश कलाम इतने हैं कि उन्हीं के पास तवील रहना भी लगता है मुख्तसर रहना। मकसद इतनी उनकी बातों में तासीर है कि वो खुश कलाम इतने हैं कि उन्हीं के पास तवील रहना भी लगता है मुख्तसर रहना। मीन्स दीज आर पीपल, दे हैव अ कैरिज्मा। अब नाउन कैरिज्मा है तो उसी का एडजेक्टिव क्या है? कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, आपको कशिश करती हो, तो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। डिलीशियस फूड, ड्रेस के लिए यू यूज़ एलिगेंट ड्रेस। जो साथी कॉलेज साइड पे पढ़ते हो, आपने पाकिस्तान जिंदाबाद जो पहला आपका सबक था उसमें देखा था कायद-ए-आज़म के लिए उन्होंने यूज़ किया था वो एडजेक्टिव जो ना एलिगेंट ड्रेस। ओके, कायद-ए-आज़म ऑलवेज वोर एलिगेंट ड्रेस। उन्होंने हो सकता है वहाँ पे एडवर्ब यूज़ किया, ही वॉज एलिगेंटली ड्रेस्ड। ओके, तो एलिगेंट जो होता है जब हम ड्रेस के लिए लगाते हैं, तो किसी भी नाउन को अपना खूबसूरत एडजेक्टिव देना ये बहुत अहम मामला है और आपके लैंग्वेज का ये बहुत खूबसूरत पार्ट है जिस पे आपने काम करना है। देन वी कम टू वर्ब। ओके, अब नाउन ने नाम रखा, प्रोनाउन मुतबादिल लाया और एडजेक्टिव ने नाउन प्रोनाउन के बारे में वजाहत की। अब वर्ब ये बताता है कि वो काम क्या करता है। सपोज आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। शी वर्क्स, वो काम करती है। दे प्ले, ही राइट्स, तो राइट, प्ले, कम, गो, रीड, व्यू, वॉच, प्रैक्टिस। वर्ब मतलब वर्क, काम कौन सा हो रहा है? जो काम हो रहा है वी कॉल इट वर्ब। ओके, तो नाउन ने नाम रखा, प्रोनाउन मुतबादिल लाया ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो। एडजेक्टिव ने उनकी वकालत की, उनके बारे में मालूमात दी। अगर घर है तो घर नया है या पुराना, सेब है तो छोटा है या बड़ा, ये छोटा बड़ा एडजेक्टिव है, नया पुराना एडजेक्टिव है। और टीचर है तो अच्छा है ख़राब है, अच्छा ख़राब, ये एडजेक्टिव है, टीचर नाउन है। सो इस तरीके से वर्ब हमें ये बताता है कि व्हाट इट डज। ओके, ये काम क्या करता है, व्हाट इज दिस। फॉर एग्जांपल यू से दैट ही टीचेस, तो टीच इज अ वर्ब।
ही प्रैक्टिसेस इन अ हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में काम करता है। प्रैक्टिस इज अ वर्ब। डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। treat patients, okay, so doctor treats patients, okay, that's very important. then adverb, okay, अब देखें नाउन ने नाम रखा, प्रोनाउन ने मुतबादिल बताया, एडजेक्टिव ने बताया कि वो नाउन प्रोनाउन है कैसा, वर्ब ने बताया काम क्या करता है। अब हम आते हैं एडवर्ब। देखिए इसके नाम से जाहिर है ये है एड प्लस वर्ब। जब हम एड प्लस वर्ब की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि ये वर्ब में ऐड कर रहा है। देखें ना, अब वर्ब में ऐड करे से मुराद ये कि देखें जिस तरह आपको नाउन के बारे में एडजेक्टिव ने बताया ना, तो वर्ब को क्लियर करना एडवर्ब की जिम्मेदारी है। एडवर्ब कैसे काम करेगा? अब आप कहते हैं ना कि अली पढ़ाता है, ही टीचेस। अब टीच एक वर्ब है, पढ़ाता तो है लेकिन कैसे पढ़ाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आप कहें कि अली टीचर है तो टीचर नाउन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टीचर कैसा है तो आपको एडजेक्टिव गुड लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे अली इज़ अ गुड टीचर। तो अब जो गुड है ना वो नाउन के बारे में बता रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि अली पढ़ाता कैसे है तो आप कहेंगे सर अली टीच वेल, अली अच्छा पढ़ाता है, टीच वेल। ये जो वेल है WEL वेल, ये एडवर्ब है। ये किसके बारे में मालूमात दे रहा है? उस वर्ब के बारे में। पढ़ा तो रहा है, कैसे पढ़ा रहा है? ही टीच वेल। ही टीच स्लो, SLOW, स्लो, वो स्लो पढ़ाते हैं। तो स्लो क्या है? स्लो एडवर्ब है, बता रहा है काम कैसे हो रहा है। ही रन्स फास्ट, ये तेज दौड़ता है, फास्ट, ओके, फास्ट बता रहे कि वो काम कैसे हो रहा है। सो नाउन नाम रखता है, प्रोनाउन उसके मुतबादिल लाता है, एडजेक्टिव बताता है वो नाउन प्रोनाउन है कैसा, वर्ब बताते हैं कि वो काम कैसे करता है, और एडवर्ब बताता है, वर्ब बताते हैं कि वो काम क्या, कौन सा काम करता है, और फिर एडवर्ब हमें बताते हैं कि वो काम कैसे हो रहा है। पढ़ा तो रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, जा तो रहा है, कैसे जा रहा है। सपोज आप जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि आई टीच अल्टरनेटिवली, अब मैं अल्टरनेटिवली पढ़ाता हूँ एक दिन छोड़कर दूसरे दिन। अच्छा, मैं अल्टरनेटिवली एडवर्ब यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अल्टरनेटिव एडजेक्टिव भी यूज़ करता हूँ कि आई टीच ऑन अल्टरनेटिव डे। अब देखिए डे नाउन है, एक चीज़ का नाम है डे, और उसके साथ हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं अल्टरनेटिव डे। आई टीच ऑन अल्टरनेटिव डे, तो अल्टरनेटिव एडजेक्टिव है, डे इज़ अ नाउन। इस तरीके से नाउन की वकालत करना, उसको क्लैरिफाई करना, ये एडजेक्टिव का जिम्मेदारी है, और जो वर्ब को क्लियर करना, उसी के बारे में मालूमात देना, ये एडवर्ब की जिम्मेदारी है। एडवर्ब हमें ये बताता है कि काम तो हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो खेल तो रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं? सर वो अच्छा खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे यही अच्छा एडवर्ब है, क्योंकि अच्छा ये नहीं कह रहा, अच्छा कह रहे हैं कि वो काम के बारे में बता रहे हैं। वो दे आर प्लेइंग वेल, यहाँ पे वेल जो है ना वो प्ले के बारे में बता रहा है। अगर मैं कहूँ कि जाहिद इज़ अ गुड क्रिकेटर, तो जाहिद अच्छा खिलाड़ी है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पे मैं अच्छा खिलाड़ी के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो एडजेक्टिव है। जाहिद इज़ अ गुड प्लेयर, तो ये गुड एडजेक्टिव है, प्लेयर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। फिर यही गुड अब एडवर्ब बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है गुड एडजेक्टिव है तो वो हमेशा एडजेक्टिव रहेगा, ऐसा ज़रूर नहीं है। वो अपनी इस्तेमाल में चीज़ें होगी। इसके लिए जो हम पहले ट्रेडिशनल ग्रामर में जो हम गुड को एडजेक्टिव में रख देते थे, फिर पूरी उम्र स्टूडेंट्स के जहन में एक कन्फ्यूजन रहता था कि ये गुड तो एडजेक्टिव है, नहीं गुड एडवर्ब भी हो सकता है। हमने देखना है कि सेंटेंस में वो फंक्शन क्या कर रहा है। वो नाउन की मदद कर रहा है, अली इज़ अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पे गुड जो है ना एडजेक्टिव है, क्योंकि वो प्लेयर की बात कर रहा है। लेकिन फिर कहता है कि अली प्लेज गुड, तो अब अली जो है ना, ये गुड जो है ना वो प्ले के बारे में बता रहा है कि वो खेलता कैसे है। वो ये नहीं बता रहा है कि वो अली कैसा है, वो कह रहा है अली प्लेज गुड, तो अली प्लेज गुड, ये गुड जो है ना एडवर्ब है। तो आपने देखा कि एक ही गुड एडजेक्टिव भी हो सकता है एक सेंटेंस में, तो यही गुड दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाट, नाउन ने नाम रखे, प्रोनाउन मुतबादिल आया, एडजेक्टिव आपको बताते हैं नाउन प्रोनाउन है कैसा, वर्ब बताते हैं काम क्या करता है, और एडवर्ब बताते हैं कि वो काम कैसे होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन होता है, का मतलब है कि वो काम क्या कहाँ पे हो रहा, इसके मतलब से जाहिर है। ओके, प्रीपोजिशन, ओके, ये हमें उस लोकेशन की, जगह की, पोजीशंस की बात करता है। और
जब हम पोजीशंस पे आते हैं तो एक्चुअली उसको उसकी पोजीशंस को क्लियर करना कि वो कहाँ पे है, किस जगह पर है उसको, जिस तरीके से हम ऑन यूज़ करते हैं। बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन। सर मैं गया हूँ, टेबल पे नहीं है। नो बेटा, इट इज़ नॉट ऑन द टेबल, इट इज़ इन द कबर्ड। इन कबर्ड, कबर्ड, इट्स इन कबर्ड। तो इन बता रहा है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। आई लिव इन बदीन, इन बड़े जो ना वो, इस पर फिर मैं आऊँगा डिटेल में, मैं एक एक को फिर उठाऊँगा, नाउन को, प्रोनाउन को, और फिर मैं बारी बारी इनको डिस्कस करूँगा। ये तो जस्ट मैं इन सब का एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स डेवलप हों इनके बारे में, इनकी क्लासेस के बारे में, फंक्शन के बारे में। फिर हम इनके सेपरेट एक एक को डीप में जाकर खोलेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रेपोजिशन के एरिया में हम दो चीज़ों को फोकस करते हैं। एक तो ये प्रेपोजिशन है जो लॉजिकल प्रेपोजिशन है, जो किसी न किसी लॉजिक के तहत यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ किसके ऊपर पड़ी है तो ऑन है, नीचे पड़ी है तो अंडर है। बुक इज़ ऑन द टेबल या बुक इज़ अंडर द टेबल। और कोई चीज़ किसी ख़ास दायरे में मौजूद है तो हम इन लगाते हैं। वी आर इन द क्लास, वी आर इन कराची, वी आर इन हैदराबाद। और उसके किसी मखसूस जगह पर होते हैं तो फिर हम एट लगाते हैं। एट हमें मखसूस पॉइंट की तरफ ले आता है। आई लिव इन बदीन एट मुस्लिम टाउन, इन एंड एट। आई लिव इन कराची एट मलीर, कराची बड़ा है, मलीर फिर छोटी पॉइंट है। तो वहाँ से हम इन से एट की तरफ लगाकर चीज़ों को मखसूस करते हैं। या कोई चीज़ किसी हरकत करती हुई जब किसी चीज़ के अंदर दाखिल होती है तो हम इंटर लगाते हैं। तो ये फिर जो लॉजिकल प्रेपोजिशन है इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और फिर एक फिक्स्ड या डेफिनेट प्रेपोजिशंस हैं जो एक मखसूस वर्ड के साथ चलते हैं, उनको फिर हम आगे सीखेंगे। व्हाट आर दीज फिक्स्ड एंड डेफिनेट प्रेपोजिशंस? ये वो वर्ड हैं जो मखसूस एक वर्ड को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे अब कुछ नाउन है ना, उनके बाद एक मखसूस जो है ना वो प्रेपोजिशन लगाते हैं। जिस तरह एडक्शन है, किसी चीज़ का नशा हुआ होना, तो एडक्शन ट, हम एडक्शन के साथ ट लगाते हैं। मैरिज जो शादी है, हालांकि हम यहाँ अक्सर लगाया जाता है कि मैरिज विद, हालांकि इसमें हमें मैरिज टू लगानी चाहिए कि मैरिज ऑफ कैथरीन टू डेविड विल बी ऑन नेक्स्ट मंडे। मैरिज ऑफ शाजिया टू जाहिद will be on next Monday. So marriage of Shazia to Zahid, not with Zahid, okay? या married जो adjective होता है उसके साथ भी preposition to लगाया जाता है। अक्सर हम कहते हैं कि try is a key of success। हम key के साथ of लगाते हैं preposition, हालांकि हमें लगाना चाहिए key to success। Try is a key to success, key to, not key of, okay? So then we will discuss these preposition areas one by one. तो नाउन ने नाम रखा, प्रोनाउन उसके मुतबादिल लाया, एडजेक्टिव आपको बताता है वो नाउन प्रोनाउन है कैसा, और वह बताता है काम क्या करता है, एडवर्ब बताता है कि वो काम कैसे करता है, प्रेपोजिशन बताता है कि वो काम उसकी जगह क्या है या किस लोकेशन पे है, और उसकी पोजीशन के साथ साथ फिर हमें फिक्स्ड और डेफिनेट प्रेपोजिशंस को और लॉजिकल प्रेपोजिशंस को कैटेगरिकली सेपरेट डिस्कस करना होता है और उनको समझना होता है। उसके बाद वी कम टू द एरिया ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है लैंग्वेज के अंदर लिंक पैदा करना, जोड़ना। चूँकि इसके नाम से जाहिर है दिस इज़ अ जंक्शन। व्हेन वी यूज टर्म जंक्शन, जंक्शन जो होता है जहाँ पे चीज़ें आकर मिलती है। और ये CON जब हम यूज़ करते हैं ना, खान, इसका मतलब दो होता है, दो चीज़ें। खान, देखिए ये खान सीक्वेंटली या जहाँ भी ये खान यूज़ होता होगा वहाँ पे कुछ चीज़ें लिंक होती हुई आपको मिलेंगी। सो कंजंक्शन का बेसिक जो जवाब है वो ये कि ये सेंटेंसेस को जोड़ता है, आपस में ज्वाइन करता है, उसको मिलाता है। क्यों मिलाता है? ताकि अगले हिस्से सेंटेंस के पार्ट और दूसरे पार्ट को मिलाकर हतमी फैसला किया जाए, हतमी मतलब निकाला जाए। आई केम टू मीट यू बट यू वर स्लीपिंग। अब इसमें दो सेंटेंस हैं। आई केम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने आया था। यू वर स्लीपिंग, आप सो रहे थे। मैं आपसे मिलने आया था, आप सो रहे थे। ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं। इसको लिंक करके एक इज्तिमाई फंक्शन या मफहूम निकालने के लिए हमने कंजक्शन बट लगाया। आई केम टू सी यू, आई केम टू मीट यू बट यू वर स्लीपिंग। नाउ बट इज़ द कंजक्शन हेयर जो क्या कह रहा है कि उस नाउन से दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाकर एक इज्तिमाई मफहूम या मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है।
या today I am not feeling well, या today I am sick therefore I can teach। अब देखें I am sick therefore I can teach। अब इसमें जो therefore है ये कंजक्शन है, इसमें दो सेंटेंस हैं, I can't teach I am sick। दो सेंटेंस को एक कंजक्शन ने मिलाकर हमें जो है ना इस चीज़ के बारे में उनमें उनकी इज्तिमाई मतलब या मफ़हूम निकालने में हमारी मदद की है। तो नाउन चीज़ों पे नाम रखता है, प्रोनाउन मुतबादिल देता है, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में मालूमात देता है, वर्ब बताता है काम क्या हो रहा है, एडवर्ब बता रहा है वो काम कैसे हो रहा है, और जो है प्रेपोजिशन उनकी जगह और लोकेशन के बारे में बता रहा है, कंजक्शन उनको जोड़ रहा है। और इंटरजेक्शन की जहाँ तक बात है तो इंटरजेक्शन हमारे इसको हम टैकल तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इंटरजेक्शन का मतलब है जो वाट एवर द सडन फीलिंग्स वी हैव, जो अचानक जो फीलिंग्स हमारे होती हैं उनको जब हम डिस्कस करते हैं वी यूज़ दिस इंटरजेक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल अलाइस ही इज़ डेड, अलाइस ही इज़ डेड। अब देखिए यहाँ पे अलाइस जो है ये जो है ना वो इंटरजेक्शन है, हमारी जो अचानक सडन फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स ऑफ फियर या हैप्पीनेस, खुशी होती है, खुशी में हम यूज़ करते हैं कि ये पी एक्साइटमेंट है, या वाओ ये हैरानगी को जाहिर करता है, या आउच OUCH आउच ये हम तब लगाते हैं जब कोई दर्द या पेन वगैरह हो तो हम यूज़ करते हैं आउच आई गॉट माई हैंड कट, आउच। या हम यूज़ करते हैं कि फ्यू PHEW फ्यू, दिस दैट इज़ अ साइन ऑफ एग्जॉस्टन, एग्जॉस्टन थकावट, जब आप थके हुए होते हैं आप कहते हैं फ्यू आई एम टायर्ड, फ्यू आई एम टायर्ड। या हम यूज़ करते हैं कि फू PHOOH फू, तो जो हम फू यूज़ करते हैं वो नफ़रत की अलामत होती है, जब हम किसी चीज़ को नहीं लाइक नहीं करते तो हम यूज़ करते हैं ओग OUGH ओग, फू आई डोंट लाइक दिस फूड। तो ये जो इंटरजेक्शन होते हैं ये सडन फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं, खुशी की फीलिंग्स हों या अपना गम की हों, जिस तरह अलसेड है अलेस, या जो है अपना जीत की हो हरा, वी वन द मैच हरा। अच्छा इसे प्रोनाउंस करें हरा, हरा, अलेस, अलेस, not alas and hurrah, hara, and that there's a two words, okay, hooray or hurrah, so we should pronounce them like that. Well, तो इंटरजेक्शन आपको मदद देता है इस तरह की सडन फीलिंग्स का इजहार करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि इंटरजेक्शन को हम दो तरीके से लिखते हैं। अब देखिए पहला जो सेंटेंस अगर आप देखें कि अलाइस ही इज़ डेड, इस अलाइस के बाद कॉमा दिया गया है और आखिर में आकर एक्सक्लेमेशन साइन दिया गया है। तो आपके पास दो तरीक़ेकार हैं, या तो इसे एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स जिस तरह अलाइस, हरा, आउच, फ्यू, yippी, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स के बाद जो डायरेक्ट आप कामा दें, उसके बाद स्मॉल लेटर से शुरू करें और यहाँ आखिर में आकर एक्सक्लेमेशन साइन पे आप उसको ख़त्म करें। एक तरीक़ेकार ये होता है लिखने का। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स के बाद फ़ौरन बाद आप एक्सक्लेमेशन साइन दें, लेकिन जब एक्सक्लेमेशन साइन आपने दिया है तो उसके बाद आपको अगला जो है लेटर है वो कैपिटल करना पड़ेगा। देखिए तकरीबन ये चंद एक बुनियादी जगह होती हैं जहाँ पर हमें हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करना होता है। जब भी फुल स्टॉप आ जाए उसके बाद कैपिटल से लिखो, जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाए सवालिया निशान उसके बाद कैपिटल लेटर से लिखना है, जब भी एक्सक्लेमेशन साइन आ जाए अजब की निशानी उसके बाद आपको कैपिटल करना है, जब भी इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो उसमें आप लिखना शुरू करते हैं तो जिसको हम कोटेशन मार्क कहते हैं वहाँ हमें कैपिटल लिखना होता है। जब भी आपके पास प्रॉपर नाउन आ जाए तो वी जस्ट यूज़ दिस कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन है पाकिस्तान, कहीं भी आएगा, भले सेंटेंस के दरमियान में आए किधर भी आए पी कैपिटल करना है। या आपने अपने नाम लिखने हैं, अमजद, कहीं भी आए ये प्रॉपर नाउन है तो ये कैपिटल होगा। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अब अमेरिका नाउन है ना, इसका एडजेक्टिव होगा अमेरिकन। पाकिस्तान नाउन है, इसका एडजेक्टिव होगा पाकिस्तानी।
तो पाकिस्तानी पीपल, ये पाकिस्तानी जब भी आप लिखेंगे आप भी कैपिटल करेंगे, ये है एडजेक्टिव, लेकिन चूंकि ये प्रॉपर नाउन से निकला है तो वी कॉल इट प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जहाँ भी आएगा हम उसको कैपिटल करेंगे, दैट इज़ अ रूल। ओके, तो ये 5-6 जगह हैं जहाँ पे कैपिटल करना है, फुल स्टॉप के बाद और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद, एक्सक्लेमेशन साइन के बाद, इन्वर्टेड कामा शुरू होने के बाद, प्रॉपर नाउन के बाद और प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद। तो इनको हमने हमेशा कैपिटल करना होता है। तो यहाँ पे अब अगर ये आप मेथड यूज़ कर रहे हैं कि आप एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो इस सडन फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं, जिस तरह अलैस दुख की फीलिंग को ज़ाहिर करता है, हरा जो है ना वो खुशी की फीलिंग को ज़ाहिर करता है, yippी एक्साइटमेंट की फीलिंग को ज़ाहिर करता है, आउच दर्द की फीलिंग को ज़ाहिर करता है, फू या उग नफ़रत की फीलिंग को ज़ाहिर करता है। तो इनके बाद आप एक्सक्लेमेशन साइन लगाएं और उसके बाद जो है ना आगे आप जो है ना कैपिटल सेंटेंस से शुरू करें। अगर ये बुनियादी तौर पे छोटी लेवल पे हम स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे आएँ तो ये जो सेंटेंस है लेस के बाद कामा देकर और आखिर में आकर इसको एक्सक्लेमेशन साइन लगाना कंपैरेटिवली दैट्स मोर स्टैंडर्ड। सो sorry, again choices with you, you can choose the both and both are well, and last come to article। okay, तो नाउन ने चीज़ों पे नाम रखे, प्रोनाउन मुतबादिल आया, एडजेक्टिव ने आपको बताया नाउन प्रोनाउन है कैसा, वर्ब ने बताया कि वो काम क्या करता है, एडवर्ब ने बताया कि वो काम कैसे करता है, प्रीपोजिशन ने उसकी पोजीशन तय की, कंजक्शन ने उसके दरमियान लिंक पैदा की है, जोड़ा उनको, इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल। अब देखें अंग्रेज़ी के अंदर या दुनिया की कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो आर्टिकल को इस्तेमाल करती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मैं क्लियर बता दूँ, हमारी जो ज़बानें हैं, जो उर्दू सिंधी जो हम बात करें, वो इस इंटरजेक्शन तक ख़त्म हो जाती हैं। इसके लिए हमारे यहाँ आर्टिकल को समझने और पढ़ाने या पढ़ने में थोड़ी एक अजीब जो है ना वो दिक्कत या एक अजीब किस्म की जो है ना वो है। पहली बात ये है कि चूँकि कभी कभार तो हम इस एन को भी अजीब तरीके से इसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। इसको भी हमने थोड़ा आज की इस क्लास में समझना है कि आर्टिकल का रोल क्या है। अब हमारे पास जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल जो है यूज़ करते हैं हम नाउन के साथ। पहली बात नाउन जब होते हैं तो वो या तो प्रॉपर होते हैं या कॉमन होते हैं। मिसाल के तौर पे अब तो फ़ैल है, ये प्रॉपर नाउन है ना, और जो बुक है वो कॉमन नाउन है। तो कॉमन से मुराद है कि उस जैसी दूसरी चीज़ हो, प्रॉपर तो उस जैसी दूसरी चीज़ होती नहीं है। बदीन जैसा दूसरा सिटी नहीं है। हो सकता है किसी शहर का नाम बदीन हो, लेकिन वो बदीन इस तरह नहीं होगा जिस तरह का हमारा बदीन है, जो बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। और हर किसी का अपना शहर बहुत प्यारा ही होता है, माफ़ कीजिएगा। तो अब देखें ना, ये बदीन प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो टेबल है वो कॉमन नाउन है। अब जब कॉमन नाउन में हम आते हैं उसमें फिर काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल से मुराद वो जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल से मुराद जिनको हम गिन नहीं सकते। अब टेबल, चेयर्स, इनको हम गिनती कर सकते हैं तो ये काउंटेबल बनते हैं। अब जो काउंटेबल होते हैं वो फिर या सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। अब मिसाल के तौर पर टेबल एक सिंगुलर है और इसका प्लूरल टेबल्स होगा जो जमा है, वाहिद और जमा। तो अब ये है कि नाउन हो पहली बार, फिर वो कॉमन हो दूसरी बात, फिर वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल ना हो। अनकाउंटेबल वो होता है जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। पानी को हम गिनती नहीं कर सकते। ये नहीं कहते एक पानी, दो पानी, तीन पानी, एक दूध, दो दूध, एक पेट्रोल, दो पेट्रोल। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम इनको अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे ट्रीट करते हैं। बुक को हम काउंट कर सकते हैं और स्टार्स को हम काउंट करते हैं। तो ये भी यहाँ पे गलतफहमी दूर करता चलो, जिस तरह हम कहते हैं ना स्टार्स जो है अनकाउंटेबल हैं, बहुत से साथी समझते हैं कि स्टार्स अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल का मुराद ये नहीं कि कोई चीज़ तादाद में ज़्यादा हो, अनगिनत हो और हम गिनकर पूरे ना पड़े। तो सर वाई इट इज़ अ की टू सक्सेस। नो, मेरा मतलब है कि ट्राई इज़ अ की टू सक्सेस से मेरा मतलब ये था कि लोग कहते हैं कि ट्राई इज़ की ऑफ सक्सेस, वो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। ऑफ नहीं लगाना चाहिए, हमें इसके साथ ट लगाना चाहिए। इसका अप्रोप्रिएट जो है तो ट्राई इज़ अ की टू सक्सेस, नॉट ऑफ। ओके, तो मेरा मतलब ये था कि इट इज़ ऑफ सक्सेस, नॉट टू सक्सेस, नॉट ऑफ। इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ ना लगाए। कम बैक टू टॉपिक। ओके, तो अब जो है ना, जब हम इस आर्टिकल पे मैं बात कर रहा था कि जब नाउन हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो और काउंटेबल,
अब स्टार्स को लोग कहते हैं कि अनकाउंटेबल है। नहीं, देखें, इस काउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब ये है कि उसकी तादाद, उससे ये नहीं कि उसकी तादाद अनगिनत है, हम गिनकर पूरे नहीं पढ़ते। ये अनकाउंटेबल का मफहूम कतई नहीं है। अगर किसी चीज़ की तादाद ज़्यादा है, हम गिनकर पूरे नहीं पढ़ रहे, तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे काउंटलेस, नॉट अनकाउंटेबल। स्टार्स आर काउंटलेस। या आप लगाएं कि स्टार्स आर इन्फिनाइट, 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 वो बेतहाशा है। लेकिन वहाँ पे हम ये ना लगाएं कि स्टार्स आर अनकाउंटेबल। नो, अनकाउंटेबल का मतलब ये है कि उसकी शक्ल, उसका फॉर्म, उसकी हैयत, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि उसको 1 2 3 4 की मदद से गिना ही नहीं जा सकता। अब पानी को हम कैसे कहें? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, या 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध। इसके बरक्स आप कह सकते हैं 1 टेबल, 2 टेबल, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स, 1 बुक, 2 बुक। जहाँ आप काउंट करेंगे वो चीज़ें, उनकी शक्ल, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, आप उनको गिन सकते हैं, दैट इज़ अ काउंटेबल। अगर आप उसको गिन नहीं सकते, then it is uncountable. Okay, pani is, water is uncountable, rice is uncountable, sugar is uncountable, food is uncountable, and cake is uncountable. And on the contrary, you have this book is countable, star, 5 star, 3 star. तो जो काउंटेबल होते हैं उन्हीं के सिंगुलर प्लूरल बनते हैं, याद रखिएगा। प्लूरल सिंगुलर हमेशा उनके बनते हैं जो काउंटेबल होते हैं। जो अनकाउंटेबल्स होते हैं उनके प्लूरल नहीं बनाए जाते। वाटर के वाटर्स नहीं होता है, या मिल्क का मिल्क्स, इस तरह कोई प्लूरल नहीं बनता, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अनकाउंटेबल, सो वी कांट यूज देयर प्लूरल। वेल, तो ये जो जब भी हम कोई भी नाउन हो, पहली बात, फिर वो कॉमन हो, दूसरी बात, फिर वो काउंटेबल हो, तीसरी बात, फिर वो सिंगुलर हो, चौथी बात, उसी को जब हम रेफ़र करते हैं अंग्रेज़ी में तो हम ये आर्टिकल लगाते हैं जो अ या एन होता है, और जिसको हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और जब हम उसको मखसूस करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं कहूँ आई नीड अ बुक, मुझे बुक चाहिए। अच्छा, अब बुक क्या है? नाउन है, बुक कॉमन नाउन है, फिर ये काउंटेबल है, फिर ये सिंगुलर है। जब भी कॉमन, काउंटेबल, सिंगुलर नाउन आएगा तो हम उसके साथ या अ लगाएंगे या एन लगाएंगे। नाउन कॉमन, काउंटेबल, सिंगुलर हो तो हम या उसके साथ अ लगाएंगे या एन लगाएंगे। फिर एक और सवाल आया कि हेयर इज़ काउंटेबल। नो, अंग्रेज़ी में हेयर जो है ना वो अनकाउंटेबल है। अब देखिए, हर ज़बान का अपना एक कंडक्ट होता है। उर्दू में, सिंधी में जो हमारे बाल हैं ये प्लूरल के तौर पे हम यूज़ करते हैं। हम कहते हैं मेरे बाल बड़े हैं या मेरे बाल छोटे हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में बाल को हम अनकाउंटेबल के तौर पे ट्रीट करते हैं, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर लगाते हैं। हम कहते हैं कि माई हेयर इज़ सिंगुलर, माई हेयर इज़ स्मॉल, या माई हेयर इज़ बिग, ओके, लॉन्ग, सॉरी, माई हेयर इज़ लॉन्ग, माई हेयर इज़ लॉन्ग, माई हेयर इज़ स्मॉल। यहाँ पे हेयर के साथ कभी भी जो है ना और नहीं लगेगा। अंग्रेज़ी में हेयर सिंगुलर है। अब ये आपको हैरानी होगी कि बहुत सी ज़बानें अपने अपने सिंगुलर और प्लूरल के पैटर्न लेकर चलती हैं। तो ये जितने भी आपके सिंगुलर या प्लूरल से रिलेटेड जो आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जब हम नाउन के चैप्टर में आएंगे तो हम चीज़ों को थरोली डिस्कस करेंगे। मैं आपके इन क्वेश्चंस को वहाँ पे ट्रीट करूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अब हम आज इस वर्ड क्लासेस के इंट्रोडक्शन में हैं। मैंने कहा है कि मैं नाउन को फिर जब खोलूँगा तो ये सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी। शुक्रिया। तो नाउन हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, तो उसको जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप इंडेफिनेट आर्टिकल या अ लगाएंगे या एन लगाएंगे। अब अगर वो अलिफ के साउंड से शुरू हो रहा है, अलिफ, तो आप वहाँ पे एन लगा दें, और अगर अलिफ के साउंड से शुरू नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे अ लगा दें। आई नीड अ बुक, अ बुक, आई नीड एन एग, एन एग। अब एग को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो अलिफ के साउंड है तो हम एग एन लगाएंगे, और बुक को जब प्रोनाउंस करें तो वहाँ पे अलिफ का साउंड से शुरू नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ मौजूद है कि अगर आप वाइल साउंड हो तो आप वहाँ पे लगा दें, तो हमारे स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में वो देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में यू है तो वो उसको एन यूनिवर्सिटी कह देते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, यूनिवर्सिटी देखें, ये नहीं है कि वो कॉन्सोनेंट वाइल लेटर्स साउंड से शुरू होता हो।
आप ये देखें, मैंने आपको सिंपल बता दिया, जहाँ भी अलिफ का साउंड से वो शुरू हो रहा हो वहाँ पे आप बिल्कुल आंखें बंद करके एन लगाया करें। एन एग, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। और देखिए एमपीए होता है ना, एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। अब ये एम है तो एम, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एम पी ए, एम। तो ये क्या होगा, एन एम पी ए होगा। ओके, एन एम पी ए। या एम ए इंग्लिश, एम ए इंग्लिश, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ एन एम ए इन इंग्लिश, एन एम ए। लेकिन एम को जब हम पढ़ते हैं तो हम अलिफ के साउंड से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो है ना वो लगाना पड़ेगा एन एम पी ए। लेकिन जब यूनिवर्सिटी को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो देखिए ये के साउंड से शुरुआत हो रही है, तो आप कभी भी एन यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि अ यूनिवर्सिटी। तो नाउन हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, तो अगर अलिफ के साउंड से शुरू होता है तो एन लगा दें, अगर अलिफ के साउंड से शुरू नहीं होता तो आप वहाँ पे अ लगा दें। अब जब इसी को आप मखसूस करते हैं तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल की तरफ जाते हैं, उसका मतलब है जब हम द यूज़ करते हैं। अब वो कैसे, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि कोई मुझे फ़ोन करे कि सर वे आर यू, आई वांट टू मीट यू, मैं उसको कहूँ कि प्लीज़ आई एम इन अ होटल, इन अ होटल। अब इन अ होटल, अब यहाँ पे मैं होटल एक किसी ख़ास जो नहीं बल्कि एक होटल की बात कर रहा हूँ। वो अगर मुझसे कहे कि सर क्या आप मेहरान होटल पे हैं, तो मैं कहूँ येस आई एम इन द होटल। द से मतलब क्या है, वही होटल, वही मखसूस होटल जिसकी उसने बात की कि मेहरान होटल, मैंने कहा येस आई एम इन द होटल। ओके, अच्छा आपको बुक लेनी थी, आप किसी दुकान के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि आई नीड अ बुक, मुझे बुक चाहिए, और वो आपके सामने वो किताबें निकाल के रखता है। आपको जो किताब लेनी थी आपने पसंद की। अब आप ये नहीं कहेंगे आई वांट टू परचेज़ अ बुक, आप कहेंगे आई वांट टू परचेज़ द बुक, वो मखसूस बुक जो आप लेना चाह रहे हैं। तो द क्या करता है, चीज़ों को मखसूस करता है। अ या एन जो है ना वो इंडेफिनेट आर्टिकल है, द जो है ना वो डेफिनेट आर्टिकल है जो उनको मखसूस करता है। द के 3 तलफ़्ज़ होते हैं, या तो हम इसको द पढ़ते हैं, अगर द के बाद कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये द बुक होगा, द बुक, द पेन, द टीचर। अगर द के बाद वाइल है तो ये दी बन जाएगा, दी एग, दी एप्पल, नॉट द एप्पल, दी एप्पल, दी। द बुक, दी एप्पल, द टीचर, दी एग, दी एग। और तीसरा इसका जो साउंड होता है वो होता है दी। वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं दी। मिसाल के तौर पे मिसाल देखें ना, घर में छोटे बच्चे होते हैं, फिर आप सेब ले आएँ और एक छोटा जो बच्चा है, आप जो टेबल में जो प्लेट में सेब पड़े हैं उसमें जो बड़ा सेब पड़ा है, अब वो छोटा बच्चा वो खाना चाहता है और बड़ा भाई कहता है मैं खाऊंगा, तो छोटा क्या करेगा, उसको पता है वो ब्लैकमेलिंग करने पे उतर आएगा। पहले तो डायरेक्ट सोफे से नीचे गिरेगा, फर्श के ऊपर उल्टा जो है ना वो लेट जाएगा, और उसके बाद वो क्या कहेगा, नो मम्मा नो, आई वांट टू ईट दी एप्पल, दी एप्पल, दी। अब दी पे क्यों इतना जोर दे रहा है, वो उस पर एम्फेसाइज कर रहा है, तो ही इज़ यूजिंग दैट दी एप्पल। ओके, सो दिस इज़ हाउ सर कॉन्सोनेंट हो तो अ या एन, वाइल हो तो अ ना। नहीं, कॉन्सोनेंट और वाइल का सेंस मैंने आपको क्लियर बता दिया कि अगर अलिफ की साउंड आता है तो आप एन लगाएं, जिस तरह एप्पल है, एन एप्पल। अब देखिए कॉन्सोनेंट में अगर चलोगे तो आप जब एम ए लिखोगे, एम ए इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें तो एम आता है ना, लेकिन उसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो हम एम जब कहते हैं तो अलिफ के साउंड से शुरू होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ही इज़ एन एम एन इन इंग्लिश। हम उसको अ एम ए नहीं कहते, एन एम पी ए कहते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट और वाइल्स के कॉन्सेप्ट्स को ना आप इसके देखें, अगर वो अलिफ के साउंड से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे आप एन लगाएं, अगर वो साउंड नहीं है तो आप वहाँ पे जो है ना वो अ लगाया करें, दैट विल बी बेटर वे। ओके, सो दिस वाज जस्ट ऑन माय पार्ट। Now look at that, is this elaborate explanations of these different word classes. Here I'm not teaching you how this, what are the definitions of these noun, pronoun, verb, adjective, no.
We are talking about their function. This is very important, okay? In today's pedagogy, in a modern time, when we want to understand language, then we are not trying to just stuck to the definitions of the grammar, but what we are trying to understand that how they are going to function. Their function is important, and how do they function in their language system, because language is overall is a system. And in this system, how language works, each component, what is its role, what is its contribution towards the holistic meaning making sense in the system of a language is very important. So my dear student, this elaborate explanation of these word classes was designed, it was made to develop basic concepts about this thing, and now we are going to check our skill, that to what extent we are able to understand, that whether we can identify them or not, okay? खूबसूरती ये होगी आपके लैंग्वेज की कि जब एक सेंटेंस आपके सामने हो तो आप वहाँ पे उसको पहचान रहे हो कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। तो इसको जब आप एनालाइज करना शुरू कर देंगे तब आपको फिर पता चलेगा कि लैंग्वेज ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लैंग्वेज में कैसे जो ना ये चीज़ें काम कर रही हैं। इसको असल जब तक हम अपने इस सेंटेक्स की जो स्टडीज़ को अपनी लैंग्वेज के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें लैंग्वेज सिस्टम का पता नहीं चलेगा कि मुझे यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत है, मुझे एडजेक्टिव की ज़रूरत है, मुझे एडवर्ब की ज़रूरत है, मुझे कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। तो असल चीज़ें इनको हमने साथ जोड़कर चलना होता है। अभी हम जाएंगे एनालिसिस की तरफ। वी हैव टू एनालाइज द सेंटेंस। हम सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे। आपके स्क्रीन पे एक सेंटेंस आएगा, आप उसको अपनी लैंग्वेज में एनालाइज करें कि इसमें नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सा है, कंजक्शन कौन सा है। उसके बाद फिर जो है ना मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। सो इट इज़ योर टाइम टू एनालाइज दिस सेंटेंस। पेन और पेपर आपके पास मौजूद होगा और आप उस पेन और पेपर का हेल्प लेकर इस सेंटेंस को एनालाइज करें। I play cricket fast, but I play football slow. I am a fast bowler. इसमें एनालाइजिंग अ सेंटेंस, इसको आप एनालाइज करें। हर सेंटेंस में आई क्या है, प्ले क्या है, क्रिकेट क्या है, फास्ट क्या है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। देन वी विल डिस्कस प्लीज। Good, good. Thank you, Second. Yes, it's very interesting to analyze sentence. Okay. Yes, Sujala. I is a pronoun. Okay, that's nice. Play is verb. Good, good. Play is verb. Okay. I play is a verb. I is a pronoun. Play is a verb. Yes, Munir. Good. Okay. Munir. Good. Okay. Fast is adverb. Okay. I play cricket fast. Good. Okay. Good. Good. Play is a fast.
because it's going to qualify this play verb. Okay. Good, Munir. Okay. But is conjunction. That's right. Okay. Fast is adverb. Second measure. That's nice. Okay. In the first sentence, fast is adverb, but in second sentence, fast is adjective. Okay. Cricket is noun. Good. Okay. Nurul Nasa. I subject. प्ले वर्ब. देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट में सेंटेंस को एनालाइज करने के बाद सेंटेंस के पार्ट के हवाले से मैंने नहीं कहा है. मैंने कहा कि सेंटेंस को वर्ड क्लास के एतबार से एनालाइज करें. तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट या उसको नहीं डिस्कस करें. हम जो ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं. आई इज प्रोनाउन. ओके. सेकेंड. गुड. ओके. दैट्स नाइस. स्लो इज एडवर्ब बट आई प्ले फुटबॉल स्लो. यस, एग्जैक्टली. स्लो इज एडवर्ब. सेकेंड, यू आर राइट. Now let us see there. Okay, this is what is your answer. Okay, I pronoun, play is a verb, and cricket is noun. Okay, इसका नाम है. Okay, I play cricket. Okay, noun. Fast is adverb. देखिए यहाँ पे fast किसके साथ ताल्लुक जोड़े हुए हैं? प्ले के साथ. ये प्ले के बारे में बता रहे हैं. ये जो फास्ट है ये प्ले के बारे में बता रहे हैं. आप तो खेल तो रहे हैं. प्ले का मतलब है खेलना. खेल तो रहे मगर कैसे खेल रहे. वर्ब तो काम बताता है लेकिन काम कैसे होता है वो फिर एडवर्ब बताता है कि तेज हो रहा है. कि आई प्ले क्रिकेट फास्ट. बट इज ए कंजक्शन. कंजक्शन का मतलब क्या है कि इन सेंटेंस को जोड़ना. अब पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़कर हम इज्तिमाई मतलब निकालने की कोशिश करें. बट इज ए कंजक्शन. आई फिर प्रोनाउन है. प्ले वर्ब है. फुटबॉल नाउन है. अब अगर आप देखें कि आई प्ले क्रिकेट. ओके, ये जो प्ले वर्ब है, क्रिकेट नाउन है. फास्ट, ये फास्ट इस प्ले की तरफ जा रहा है कि ये प्ले कैसे हो रहा है? फास्ट हो रहा है. बट इज ए कंजक्शन. बट इस सेंटेंस को आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल स्लो, इन दोनों सेंटेंस के दरमियान लिंक करा है. दिस बट इज ए कंजक्शन. इसका कहा ये कंजक्शन है, जंक्शन पैदा करा है. आई प्ले फुटबॉल स्लो, ये स्लो एडवर्ब है. अब देखिए यहाँ पे स्लो एडवर्ब है, यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है. ये दोनों प्ले वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं. अब मैंने उसी को यूज़ किया. आई एम ए फास्ट बाउलर. अब देखिए यहाँ पे फास्ट क्या था? एडवर्ब था, क्योंकि प्ले के बारे में बता रहा था. यहाँ पे फास्ट क्या है? फास्ट जो है ना बाउलर के बारे में बता रहा है. बाउलर क्या होता है? एक नाउन है. अब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मुझे आप टीचर कहते हैं. जो इलाज करता है ना हम उसे डॉक्टर कहते हैं. इस तरीके से जो बॉलिंग कराता है हमने क्या नाम रखा है? बॉलर. या बैट्समैन जो बैटिंग कराता है. फास्ट बाउलर. फास्ट इज एडजेक्टिव जो बता रहा है कि ये बॉलर कैसा है, कैसे बॉलिंग कराता है. तो नाउन के बारे में मालूमात दे रहा है. तो देखिए फास्ट उसी सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस में एडवर्ब था, नीचे वाले सेंटेंस में फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है. फिर जिस तरह ऊपर सेंटेंस में स्लो एडवर्ब है. अब अगर मैं स्लो को एडजेक्टिव यूज़ करूं, मैं कहूं कि जाहिद इज़ ए स्लो रीडर. जाहिद इज़ ए स्लो रीडर. तो अब जाहिद क्या हो जाएगा? जो है ना ये सिंपल यहाँ पे जो है वो एडवर्ब हो जाएगा और वी विल से दैट जाहिद इज़ ए स्लो रीडर लाइक दिस. ओके, तो वी सिंपली कैन यूज इट लाइक दैट. So this way you can analyze this sentence and this will be an fast yes. So you can analyze this sentence. This is a complete picture in front of you. You can see that how the noun and अच्छा इसमें एक चीज़ जो I है प्रोनाउन है. दूसरे सेंटेंस में am जो है वो लिंकिंग वर्ब है. जो है इंडेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि इंडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है. आगे जो बॉलर है वो बॉलर नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है. तो उसके आगे देखिए हमने इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया है. ये जो बॉलर है ना ये नाउन है. नाउन तो है लेकिन ये सिंगुलर नाउन है. तो ये नाउन है, फिर कॉमन है, फिर काउंटेबल है, सिंगुलर है. तो ये अ खड़ा है. अ बॉलर. ये फास्ट जो है ना ये एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है. ये आई एम जो है ना यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है. अब ये वर्ब होते हैं. वर्ब बेसिकली हम जब पढ़ते हैं तो हम पहले तो जो हमारे एक्शन वर्ब हैं उनको पढ़ते हैं. फिर हम जो है ना हेल्पिंग वर्ब्स जिससे आप कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, या जिसको हम टेंस वर्ब कहते हैं जिससे हमें टेंस का पता चलता है, वो टेंस वर्ब कहलाते हैं. और तीसरे जो हमारे पास वर्ब होते हैं वो लिंकिंग वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में लिंक पैदा करते हैं. तो जो ना चौथा जो वर्ब होते हैं वो मॉडल वर्ब्स होते हैं. तो जब हम वर्ब में आएंगे तो हम एक्शन वर्ब को, लिंकिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को और मॉडल वर्ब्स को और कॉजेटिव वर्ब्स को सेपरेट करके पढ़ेंगे ताकि हम उस चीज़ को जो है ना वो उस कैटेगरिकली समझ सकें कि इनमें डिफरेंस क्या है.
सो दिस वॉज नाइस टू एनालाइज दिस थिंग। ये एम जो है ये इस सेंटेंस के अंदर लिंकिंग वर्ब है, और इसी एम को हम हेल्पिंग वर्ब भी बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, अब ये एम जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, और ये जो और अभी जो है ना ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, जो सेंटेंस को लिंक कर रहा है। सो दैट वाज नाइस अप टू दिस सिंटैक्स की जहाँ तक बात है। मेरे समझ में सिंटैक्स में काफ़ी हो गया। अभी हम जाएं थोड़ा जो है ना वो सिमेंटिक्स की तरफ, जिसमें हम सिमेंटिक्स को थोड़ा इम्प्रूव करें, क्योंकि लैंग्वेजेस के अंदर हमने कहा कि हमने सिमेंटिक्स भी कलेक्ट करने हैं, वर्ड्स भी, वोकैब को भी और सिंटैक्स को भी। तो अभी हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी विल बी सिमेंटिक्स। ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड लाइक दैट टुवर्ड्स दिस एरिया। If you recall this, okay, in our previous class, okay, regarding this semantics, we covered this reading, और ये reading sessions में हमने cover किया था कि life is really an interesting mystery to unearth। ज़िंदगी एक राज है, इसको खोलना, इसको डिसइंटीग्रेट करना। लाइफ इज़ लाइक ए मैन हु इज़ गोइंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। ओके, एक इंसान है हु इज़ गोइंग थ्रू। अब यहाँ पे थ्रू देखें, ये प्रेपोजिशन है, जा तो रहा है, कहाँ से जा रहा है? थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से। डेंस एडजेक्टिव है, फॉरेस्ट नाउन है। जंगल तो था लेकिन कैसा जंगल? डेंस फॉरेस्ट। और अक्रॉस अ बैरन डिजर्ट, यहाँ अक्रॉस प्रेपोजिशन है और बैरन एडजेक्टिव है, जो है ना वीरान। डिजर्ट सहरा है, सहरा तो है लेकिन कैसा है? बैरन डिजर्ट, बैरन एडजेक्टिव है। ऑल ऑफ सडन, अचानक, देयर अपीयर्स अ वाइल्ड टाइगर। देखिए टाइगर नाउन है ना, तो वाइल्ड एडजेक्टिव है, जंगली जान जो है ना वो टाइगर, वाइल्ड टाइगर। अपीयर्स ये वर्ब है, अपीयर्स अ वाइल्ड टाइगर। यहाँ पे क्यों लगा है? आगे देखो टाइगर है, टाइगर क्या है? नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो देयर इज अ वाइल्ड टाइगर। द मैन स्टार्ट्स रनिंग, अब इंसान दौड़ना शुरू कर देता है, स्टार्ट्स रनिंग, रनिंग इज का वर्ब। ओके, एंड, अब एंड कंजक्शन है। द टाइगर फॉलोज, टाइगर उसका पीछा करता है। टू कैच, द मैन इज पैंटिंग, पैंट का मतलब क्या है? हाँपना, जब आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाती है, वी यूज टर्म हॉम्पिंग। एंड रनिंग विद गॉड स्पीड, ओके, और तेज़ी के साथ ये दौड़ता हुआ जा रहा है, रनिंग विद गॉड स्पीड। सडनली ही स्टम्बल्स, सडनली, अब ये कंजक्शन है, अचानक। यहाँ वैसे एडवर्ब है लेकिन आप जो है ना ये क्वेश्चन कर रहा है, पूरे उस सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा है। तो सडनली ही स्टम्बल्स, अचानक उसका पाँव को ठोकर लगती है। ही फॉल्स, गिर जाता है। इनटू अ वेल, जाकर कुएं में गिरता है। अब देखो इनटू, यहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन लगा है ना। इनटू कब लगता है? जब भी कोई चीज़ हरकत करती हुई किसी चीज़ के अंदर जाती है तो हम इनटू प्रेपोजिशन लगाते हैं। वेल, इस प्रेपोजिशंस के चैप्टर पे इन चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। बिफोर रीचिंग द बॉटम, इससे पहले ये बंदा अपनी जो उस कुएं के बॉटम पे पहुँचे, द मैन कैचेस होल्ड ऑफ अ ब्रांच ऑफ ए टी, बंदा उस टहनी को पकड़ लेता है। अब टी ग्रोन अप बिसाइड द वेल, उसी कुएं के साथ जो दरख्त जो ना उगा हुआ है उसी की टहनी को पकड़ता है। द मैन इज हैंगिंग, वो बंदा जो ना अभी लटक रहा है, हैंगिंग इन द वेल। अ जॉयंट क्रोकोडाइल, जायंट एडजेक्टिव है, क्रोकोडाइल जो ना मगरमच्छ, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ। विद ओपन जॉज, अब जॉज अगेन नाउन है, जबड़े, ओपन एडजेक्टिव है। विद ओपन जॉज इज वेटिंग, वेटिंग वर्ब है, डाउनवर्ड्स प्रेपोजिशन। टू डेवर, डेवर का मतलब है निगल जाना, सवालो, गल्प डाउन, उसको खा जाने के लिए, निगल जाने के लिए एक बड़ा मगरमच्छ अपने जबड़े खोल कर बैठ रहा है। वेयर इज द वाइल्ड टाइगर इज लुकिंग एट द मैन फ्रॉम द अपवर्ड्स, जबकि वो जो जंगली टाइगर है वो ऊपर से उस बंदे को देख रहा है। विद वाटरिंग माउस, जो है ना वो वाटरिंग माउथ, ओके, या माउस के साथ देखें ना हमने वाटरिंग एडजेक्टिव लगाया हुआ है, उसका पानी में मुंह में पानी भरा हुआ है कि कब ये बंदा ऊपर आए मैं इसको खाऊं। देयर इज अ हनीकॉम्ब इन द ब्रांच ऑफ द ट्री, उसी टहनी के अंदर एक जो है ना वो शहद की का जो है ना वो छत्ता है, जो हनीकॉम्ब विच गेट्स ब्रोकन एज द मैन जल्कली कैचेस होल्ड ऑफ द ब्रांच, जो ही बंदा झटके के साथ उसकी टहनी को पकड़ता है तो वो शहद का छत्ता टूट पड़ता है। एज अ रिजल्ट, अब देखिए ये यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे काम कर रहा है। जब छत्ता टूटता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? हनी ड्रॉप्स स्टार्ट्स फॉलिंग। ये देखिए एज अ रिजल्ट किस तरह कंजक्शन कर रहा है। जब छत्ता टूटता है तो हनी के कतरे आस्ता आस्ता जो ना गिरना शुरू कर देते हैं। द मैन इज सकिंग आर लेकिंग आर लैपिंग हनी, और बंदा वहाँ पे बैठकर वो उस हनी खा रहा है। अब एक होता है सक, जो चूस कर किसी चीज़ को किया जाता है ना वो सक होता है। एक लिकिंग होता है जो चाटा जाता है, लिक करना, और एक लैपिंग होता है। लैपिंग हम तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, कुछ जानवरों को देखा कि ज़ुबान के साथ किस तरह चाट कर खाते हैं, खरगोश वगैरह को आपने देखा होगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लैपिंग। ओके, लैपिंग हनी, बीइंग क्वाइट इग्नोरेंट
ऑफ क्रोकोडाइल। अब वो बंदा उनसे बिल्कुल बेखबर है कि वो नीचे मगरमच्छ है, ऊपर टाइगर है। सो दिस इज़ द लाइफ, ये ज़िंदगी होती है, इस तरीके से हम ज़िंदगी गुजारते हैं। अब ये पिछली क्लास का रिव्यू था। आज की जो रीडिंग होगी वो नया जो ना वो जो यूनिट आप उसको पढ़ेंगे, आप 3 काम करेंगे, आप उसको समझेंगे नंबर 1 बात, नंबर 2 बात आप उसको गैस करेंगे, नंबर 3 बात जो बिल्कुल न्यू वर्ड्स होंगे वो जहन में रखिएगा। फिर जब मैं एलाबरेट करूँगा तो हम उसको आगे जाएंगे। योर टाइम बिगिनस नाउ, गो विद योर रीडिंग प्लीज़। Thank you very much. Okay, your reading time is over. Okay, now let's go for explanations. Okay, now here is today's reading was taken from Secret of Life. Secret of Life or Success. Okay, there lived a rich person एक अमीर बंदा रहता था, who had a young son. उसका एक नौजवान बेटा था, young son. One day, the rich man came to know about a scholar who was considered to be very wise. एक दिन उस अमीर बंदे को पता चला कि वहाँ पे एक स्कॉलर है, एक आलिम है, दाना है, जो बहुत बड़ा दाना है. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी वाइज, बहुत बड़ा दाना है. एंड सेज, सगेशियस, बहुत बड़ा दाना है. ही इज़ वेरी वाइज पर्सन, ही इज़ वेरी सेज. सेज मीन्स दाना, सगेशियस बड़ा सूझबूझ वाला, अकुल फहम वाला. ही इज़ अ सगेशियस पर्सन. द रिच मैन सेंट हिज सन टू द स्कॉलर टू नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. उसी अमीर ने अपने उस बेटे को भेजा उस आलिम के पास टू नो द सीक्रेट, इसको सीक्रेट ना कहा करें, सीक्रेट ऑफ सक्सेस अ लाइफ. बोला कि आप जाकर उससे पता करें कि कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है. द बॉय रीच द डेस्टिनेशन. रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता, जिस तरह रीच एट या रीच नो. रीच द डेस्टिनेशन से मुराद है कि वो मंजिल डेस्टिनेशन. अब ये लड़का अपनी मंजिल पे पहुंचा. मंजिल कौन सी थी? वो आलिम स्कॉलर जहाँ पे रहता था वहाँ गया. द वाइज मैन इंक्वायर्ड द रीज़न ऑफ गोइंग. वाइज मैन ने उससे पूछा कि उसके जाने का वहाँ पे क्या मकसद था.
उस बूढ़े ने पूछा, आलिम ने पूछा कि भाई क्यों आए हो? दे इंक्वायर्ड द रीज़न ऑफ गोइंग व्हाट द बॉय स्टेटेड। द लड़के ने स्टेट किया, बयान किया, बताया कि उसके पापा ने भेजा है कि कामयाब ज़िंदगी का राज बता। द स्कॉलर आस्क्ड द बॉय टू वेट फॉर हिज टर्न। आलिम ने कहा कि तुम अपनी बारी का इंतजार करो। टू वेट, टू वेट, अच्छा ये जो टू होता है इसको टू ना कहा करें, सिंपल कहा करें। टू वेट, टू वेट, to go, to play, to. So ask the boy, boiling, joy, boy, ask the boy to wait and to wait for his turn. बोला अपनी बारी का इंतजार करो। On his turn, the boy repeated the reason and the scholar gave a spoon to the boy to hold it up. अब लड़के ने कहा कि मैं आया हूँ राज पर जाने के लिए, तो उस बूढ़े ने, उस आलिम ने उसको एक चम्मच दिया, स्पून, टू द बॉय टू होल्ड इट अप। बोला ये चम्मच पकड़ो। एंड द स्कॉलर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ वाटर, उसी के ऊपर एक पानी का कतरा डाला उसी चम्मच पे, आंट द स्पून। देखिए यहाँ पे मैं प्रेपोजिशन आंट लगा रहा हूँ। आंट का मतलब होता है कोई चीज़ हरकत करती हुई किसी के ऊपर आन हो जाए ना, तो हम लगाते हैं आंट। जिस तरह इंटू होता है ना, हरकत करती हुई अंदर जाए तो इंटू, हरकत करती हुई ऊपर आती है तो आंटू। अब ये चम्मच का कतरा आया जो चम्मच के ऊपर आकर आन हो गया, तो मैं यहाँ पे आंटू। ड्रॉप अ वाटर आंट द स्पून एंड आस्क द बॉय टू विजिट हिज ह्यूज कासल। और कहा कि जाकर मेरी इस कासल को विजिट करो, मेरे इस महल को विजिट करो। कासल मीन्स महल, हाउस और पैलेस। एंड गार्डन, बोला मेरे बागात को विजिट करो, मेरे महल को, घर को विजिट करो। बट वार्नड हिम, वार्निंग, लेकिन इसको ये वार्निंग दी, इसको जो है ये माफ़ कीजिएगा चुनौती हिंदी का वर्ड है, लेकिन इसको वार्न किया कि हिम नॉट टू लेट द ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल, लेट द ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल, लेकिन देखो पानी के कतरे को गिरने ना दीजिएगा। सो द बॉय आफ्टर विजिटिंग द कासल, वो लड़का घूम कर वापस आया, केम बैक टू द स्कॉलर, अब उस आलिम के पास आया। देखिए पहले मैंने लगाया था अ स्कॉलर, अब मैं लगा रहा हूँ द स्कॉलर, क्योंकि हम उसी स्कॉलर की बात करें जिसको हमने पहले कहा ना, देयर लिव्ड अ स्कॉलर। अब जब भी वो स्कॉलर का दोबारा जिक्र होता है तो हम यहाँ पे द लगाते हैं ना, क्योंकि द उसी मखसूस स्कॉलर की बात करें। केम बैक टू द स्कॉलर, और ये बॉय भी पहले अ बॉय था, अब द बॉय होगा, जहाँ यूज़ होगा द बॉय यूज़ होगा। Who asked the boy if he had seen particular flowers? अब इसने आकर उस लड़के से पूछा कि क्या तुमने वो फूल देखे, वो फर्नीचर देखा, वो सीनरी देखी? To which the boy replied in simple negation. बच्चे ने बिल्कुल इनकार में जवाब दिया। नेगेशन का मतलब है ना में जवाब दिया कि नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं देखी। The scholar asked the boy to go back and visit each and everything carefully, minutely and thoroughly. स्कॉलर ने दोबारा कहा कि दोबारा जाओ, to go back, वापस जाओ, and visit each and everything, एक एक चीज़ को देखो carefully। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब यूज़ हो रहे हैं ना, देखो सही, कैसे देखो? carefully, minutely, ओ बारीक बीनी से देखो, एंड thoroughly, बड़ी गहराई से देखो, हर चीज़ को carefully देखो, minutely देखो, जो नो, और thoroughly गहराई के साथ देखो। The boy after visiting thoroughly came back, अब वो लड़का वो सब चीज़ें घूम फिर कर वापस आया। एंड द स्कॉलर आस्क्ड द बॉय अबाउट डिफरेंट थिंग्स। अब दोबारा आलिम ने पूछा कि तुमने वो सीनरी देखी, वो घर, वो पिक्चर देखी, वो आपने सोफ़ा देखा। एंड दिस टाइम द बॉय वॉज क्वाइट एंड अपडेटेड। अभी जो लड़का था वो क्वाइट अपडेटेड था, हर चीज़ के बारे में बता रहा था कि हाँ ये सीनरी है, ये कलर है, एक्सेट्रा। एट लास्ट, आखिरकार, व्हेन स्कॉलर आस्क्ड अबाउट द ड्रॉप ऑफ वाटर, सब चीज़ों के बाद जब आलिम उस स्कॉलर ने पूछा कि वो पानी का कतरा किधर है, द बॉय वाज शॉक्ड, वो लड़का हैरान था। एंड ही डिडंट नो, उसको पता नहीं था एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, पता नहीं किस वक्त इट हैड फॉलन डाउन, कि ये सब चीज़ें देखते देखते उसको याद ही नहीं रहा था कि किस टाइम वो पानी का कतरा उस चम्मच से गिर चुका था। द स्कॉलर टोल्ड द बॉय that the secret of life, success is to keep enjoying the surrounding, but don't let the drop of hope and thirst and responsibility and duty and a conscience fall down. तो उस आलिम ने उसको कहा, told the boy, कि ज़िंदगी का राज ये है, keep enjoying the surrounding, जो आपकी सराउंडिंग है उसको enjoy करते रहो, keep enjoying, मगर उस कतरे को, don't let the drop of hope,
लेकिन कभी भी ये उम्मीद का कतरा ना गिर जाए। ट्रस्ट, ये जो भरोसे का कतरा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो जिम्मेदारी का कतरा है। ड्यूटी, जो अपने फ़र्ज़ का कतरा है। एंड कॉन्शंस, ज़मीर का जो ये कतरा है, डोंट लेट इट फॉल डाउन, ये नहीं गिरना चाहिए। और जब ज़िंदगी से ये कतरा चला जाता है, उसके बाद ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। तो ये बस एक कतरा है जिसका हमने, आपने और हम सब ने मिलकर जो है ना उसको संभालना है। और यही कतरा हमारी ज़िंदगी में मतलब भी रखता है और मीनिंग भी रखता है। दैट इज़ व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ लाइफ। एंड इफ़ वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, वी कुड मूव दिस थिंग, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस. So please keep enjoying your surrounding. Though today we can't use word enjoying because we all are confined with giving to this unprecedented circumstances of COVID-19. But be sure that the drop of hope and the trust and responsibility and the duty and the conscience must not fall down. We are human beings, and I believe that man can be destroyed but cannot be defeated. So we can't be defeated. Let's move forward. Okay, the last segment of this class, this will be your we would watch video and then we will end this class. Okay, so this is your listening session. The reading session is over. Now your listening session. Let's move towards your listening session, please. I don't want to eat them ever again. Oh, what do you think? So what will you eat instead? I will eat whatever there's on the table, but not chicken or meat. Why do you think you don't want to do that? Because they're animals and I like animals. So what will we do if we miss eating chicken and meat? I don't miss eating chicken and meat. How about fish? Fish? Yeah. Fish? Is it an animal? Yeah. I won't eat that either. Oh my God, so what? I won't eat animals! Okay. So what do you want to eat? What kind of food do you want to eat? Anything's on the table but not animals. Why do you feel sorry for animals? Because they're nice and I know that we cook them sometimes, which is not very nice, and I know we like to eat animals that we cook, but that's not nice for them. Yeah, do you think they suffer? I think that they don't really like being cooked in the oven. That's nice. Okay, now see, this is small girl was just trying to say that the people who are just carnivorous and we keep eating these different animals, whereas she doesn't like to eat these animals. So in this clip we see a cute young girl who is not willing to eat chicken, meat or animals. वो इनको खाने के लिए तैयार नहीं है. He thinks that animals should not be cooked. इनको हमें नहीं पकाना चाहिए in the oven. They are good and they don't like to be eaten. ये जानवर अच्छे होते हैं और ये नहीं चाहते कि उनको खाया जाए. Okay. When her mother asks her whether she will eat fish or not, जब माँ पूछती है कि क्या मछली खाओगे, she asks if fish is an animal. तो वो पूछती है क्या मछली भी एक जानवर है. The mother replies in affirmation. तो माँ हाँ में जवाब देती है. Affirmation means replies in affirmation. क्या मतलब है हाँ में जवाब देती है. ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि replies in negation. Negation means ना में, यहाँ पे affirmation means हाँ में. She says that she will not eat it either. तो ये कहती है कि मैं फिर वो भी, अगर वो है तो फिर मैं मछली भी जानवर है तो मैं वो भी नहीं खाऊंगी. You can pronounce it either, you can pronounce it either. So she will not eat it either, कि ये फिर वो भी नहीं खाएगी. Some animals are carnivorous. कुछ जानवर होते हैं जो carnivorous होते हैं, जो सिर्फ गोश्त खाते हैं. That eats only meat. The others are herbivorous. दूसरे जो हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, grass and herbs and shrubs. Whereas some are omnivorous. कुछ omnivorous होते हैं जो गोश्त भी खाते हैं और घास भी खाते हैं. A man is an omnivorous. हम vegetables भी खाते हैं तो गोश्त भी खाते हैं. So that was designed
This clip was just developing your semantics, and here we can see that it is really because of this overeating is one of the cause of this COVID-19 which we are facing today. So this video clip and whatever the reading session, that was only to enhance your semantics. Language should go with the semantics, phonetics and syntax. If you would keep these three things abreast and you keep practicing in your daily life, I hope that your language would improve a lot. And this is how we are going to end this 8th session here, and hope so we will meet again day after tomorrow with this wonderful experience and sharing. Till that, stay blessed, stay safe, and hope so our next session will be in the month of Ramadan. So I think that we need to shorten the period of this class. We should bring it up to 1 hour. अब क्योंकि रमज़ान शरीफ आ चुका होगा तो हम इसको 1 घंटे तक ले आएँ. अब इस पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हम इसको 1 घंटा मुख्तसर करें 4 से 5, या ये 4 से 5:30 तक चलता रहे. तो वी वुड डिसाइड इन अकॉर्डेंस विद योर चॉइस एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू. टिल दैट, थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. बाय बाय.